Namaste, welcome back to the channel. So during the NEET admissions, students are usually searching to get the best possible college for undergraduation. One of the interesting field and the dominant field during present era is the field of Ayush, especially post-COVID. So many students are turning towards these kinds of courses and they want to know which is the best institute for them to join. Certain students even try to migrate after first professional or first year BMS, and that time also the reason for the migration is to get the best college possible. So in this video we are going to see what could be the factors which make a institute best. In the previous sections, we had seen the best PG college, the PhD related information. We had made so many points wise factors, like factor was considered and points were made. Ultimately, at the end, out of so many points, this many points could be considered as best. That was the conclusion. Now, when we talk about undergraduation, especially the Ayurveda related BMS, in India, there are so many colleges, thousands of colleges. We cannot pinpoint any one college as the best. So it is the conclusion, of course. But still, there are certain factors to consider. बहुत लोगों को लग रहा होगा कि प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज काफी अच्छे होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छे होते हैं. तो इस तरह की जो सोच है उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये एक वीडियो हम लेके आए और इसमें आपको जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिसके थ्रू आपके डिसीजन मेकिंग में मदद जरूर मिलेगा. सो काइंडली वॉच दिस. सो इनिशियली बिफोर टेकिंग द एक्चुअल टॉपिक वी विल एंटर इनटू whether you have to choose a government college or a private college. When you consider the post graduation, that is the time of stipend and that is the time when you can think about stipend or government college. Because usually private college do not provide stipend during the post graduation also or minimum stipend. लेकिन जब आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं बीएमएस जैसे कोर्स जिसकी वजह से आप डॉक्टर बनने वाले हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी स्टाइपेंड कम ही रहता है, वो भी सिर्फ इंटर्नशिप में मिलता है. ओनली इन इंटर्नशिप यू आर गोइंग टू गेट. इसलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज बेटर बोलना हमेशा सही रहेगा, हमारा आंसर नो है. तो और कौन सा फैक्टर है जहां पर हमें गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा लगता है, कौन सा ये फैक्टर है जहां पर प्राइवेट सेक्टर अच्छा लग सकता है, उसके बारे में हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. तब आपको आइडिया लग जाएगा कि मैसेज क्या आने वाला है. तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर एडवांटेजेस हम सोचे तो सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फंडिंग. फंडिंग is possible when you have a government sector. Even in private sector funding is there, but depending on the owner of the institute, possibly infrastructure may be very good or it could be very medium or it could be very hopeless kind of infrastructure. So I made a video recently regarding the scam of private colleges and such things. You can go through that. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैकल्टी है, ना आपको कुछ मिलने वाला है, बस डिग्री लेके आपको बाहर भेजा जाएगा. तो उसको आप जरूर देखिए और जाके देखिए जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि उस तरह के फैक्टर्स आपके अलॉटेड कॉलेज में है कि नहीं. अगर है तो जरूर आप उसको अगले राउंड में चेंज कर सकते हैं, तो एक मौका आपके पास पहले ही है. तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो सुटेबली आपके मेडिकल इंजीनियर मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन के लिए जरूर आपको मदद होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट ऑफ कोर्स there are very many few private colleges where infrastructure is even better than government. Now in government college, what are the points we are talking is advantages of government over the private. In government colleges, teachers are usually fixed, like usually recruited for a regular basis. On a regular basis means they don't usually change. You don't have a teacher teaching one subject and the same topic continued by another teacher. No, because he or she will be there for a long time. But in private, what happens? Usually the private institutes, either the teacher leaves the college or even the private management tells the teacher to go out of the institute due to various reasons, personal reasons, financial reasons, political reasons, many things. So
in relation to teacher having a long run in a particular college, government college will be better. So that way you will have a edge over the private college. And as usual, terms and conditions apply. There are very few private colleges also which overtake government colleges in this case, because few private colleges have a history of very long running like teachers being in one place. So that is also possible, but usually government colleges will have this advantage. Attrition rate means the number of people leaving the college every year. So that is the meaning of attrition. Now फीस, जब हम फीस की बात करें तो जरूर इसमें कोई बहस की बात नहीं है. गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस कम रहेगा, बस ये एडवांटेज है. तो प्राइवेट में किस तरह की प्राइवेट है, ये एडेड है या कंप्लीटली अनएडेड है, डीम्ड है, उस तरह से फीस बदलेगा. तो इस तरह से एडवांटेज आपको गवर्नमेंट में मिलेगा इन रिलेशन टू फीस. जैसे मैंने पहले ही कहा, इंटर्नशिप इज वन टाइम वेयर यू कैन गेट स्टाइपेंड इन ए गवर्नमेंट कॉलेज. प्राइवेट में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, मिलता भी है तो बहुत कम मिलेगा. तो उस तरह की सिचुएशन में एक एडवांटेज है, लेकिन ये पूरा बीएमएस के लिए एडवांटेज नहीं है, बस स्टाइपेंड के लिए इंटर्नशिप के टाइम आपको एडवांटेज हो सकता है. गुड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. स्टूडेंट्स राइट्स usually are taken in government institutes. What happens in private institutes? Private managements usually usually overpower the students. Otherwise, students, whenever they don't get what they want because of some issues with the management, students can't fight there, because usually management will make them to fail in the exams. Such kind of thoughts are there. इसलिए लोग ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में अपना हक के लिए लड़ते हैं और प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर बात करने के लिए नहीं जाते. इसकी वजह से उनका एक तरह से कोर्स खत्म हो जाता है, डिग्री मिल जाता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए था कभी कभी नहीं मिलता है. टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा अप्लाई होता है, मतलब गवर्नमेंट में ये एडवांटेज है, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो जिस तरह से करिकुलर एक्टिविटीज होगा उसी तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ज्यादातर हमेशा अलग टाइम पहले ही रखा होता है. प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स यूजुअली डोंट टेक केयर ऑफ दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ऑरेंज एक्सट्रीम होता है. प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चलता रहेगा, कभी कभी पढ़ाई भी बंद हो जाएगा. नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, दिस इज अ मेजर द पेशेंट्स. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आर रनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट modalities. Either it could be the outpatient or inpatient department. So when it is free, of course the patients will be in queue. You will get a huge number of patients. जब आपके पास पेशेंट इतने हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ आप ट्रायल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप घर जाने से पहले जरूर लेके जा सकते हैं. यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस. तो सीधी बात है, जितना पेशेंट्स आप ज्यादा देखोगे उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा और उतना आगे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा. ये गवर्नमेंट में एडवांटेज है. जरूर कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी इससे भी ज्यादा पेशेंट हो सकते हैं, वो एक कंडीशन हमेशा रहता है. कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर. गवर्नमेंट कॉलेज इज यूजुअली कंसिडर्ड एज ए फ्री काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, बिकॉज अगर आपका कुछ काम आ गया, आपको क्लास से बाहर जाना पड़ा, तो आपको इतना डर नहीं रहता कि कोई टीचर आ रहे हैं, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं रहता है. बिकॉज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स टीचर्स आर यूजुअली नॉट दैट मच वरीड अबाउट स्टूडेंट्स, इन द सेंस दे डोंट टेक केयर पर्सनली इंडिविजुअली. तो वो एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रहता है. इफ यू मेक यूज ऑफ इट, रिलैक्स एटमॉस्फेयर, यू मे गेट इनटू पॉजिटिव मूड एज वेल एज नेगेटिव मूड. अगर आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल गया तो आप नेगेटिव साइड में जा सकते हैं. अगर आपके कंट्रोल अच्छा है, माइंड कंट्रोल, देन डेफिनेटली इट बी अ प्लस पॉइंट. जनरली क्या होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं या कोई भी प्रैक्टिकल हो गया, जैसे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द अगत तंत्र एंड व्यवहार आयुर्वेद, यू हैव अ टॉपिक कॉल्ड एज द पोस्टमार्टम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. So in government sector, it is easy to get a tie-up with a government agency who doing the postmortem. So you'll get an opportunity to go and visit the site. In private, it may not be possible. So for tie-up whenever required, government will have an edge. Even in internship, multiple types of duties are given for government students, because few months in the own institute, few months in the major institutes of the city, because government sector, so it is easy to tie up. Next, अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांटेजेस, इतना तो मैंने एडवांटेज बता दिया, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं. ये मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ. तो जब इस तरह की रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रहेगा, कभी कभी आपका मन भटक सकता है. जब कोई आपको बोलने वाला नहीं है, जब कोई पर्सनल केयर नहीं ले रहे, तो ज्यादातर लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है, अपने गोल से डिविएट हो जाते हैं. और जब वो कोर्स खत्म करते हैं तो उनके पास स्टाइपेंड रहेगा और कुछ नहीं रहेगा. बस ये एक चीज आपको ध्यान रखना है. दिस कुड बी नेगेटिव. इन प्राइवेट कॉलेज इट्स द ऑपोजिट. समटाइम्स प्राइवेट कॉलेजेस also have this atmosphere, but good private college will have a good manners
in controlling the students. Like you can say controlled manner. Sometimes it could be extreme, it depends on the institute. But a good institute will have a balance between that particular strictness and relaxation. So that is necessary. Next, one-to-one student care is not available. In case of private institutes, some private institutes will have a one-to-one care. Some teachers have a good rapport with the student. If they know that student is interested, they may give extra attention and give discussions and other things. But in case of government college, there is no one-to-one interaction like atmosphere. So that could be one negative point. Of course, there could be exception everywhere. I'm taking general topic only. Now, when the faculty are regular, this is one major issue you can see in the government institutes, including the central universities and any other university. Even if you take BHU, you take any other institute, the faculty, when they become regular means when they are permanent, they don't get out of their job. They got a secure job. That is called regular job. They retire only at the age of 60 as of now. It could be extended up to 65. तब क्या होता है, वो इतना एंथुसियाज्म से काम नहीं करते. उनको पता है उनका काम नहीं होने से भी पैसे मिलता रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं एज के साथ और जब उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं वो एक तरह से सोबर लाइफ जीना शुरू कर देते हैं. कभी कभी वो क्लास भी नहीं लेते, कभी कभी वो लेट आते हैं. तो इस तरह की मामले चलता रहता है. ये हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉय का एक नेचर है, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा. लेकिन जो आजकल की सिचुएशन है मैं वही बता रहा हूँ, और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं. बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो अभी भी पहले जैसे ही 10 साल पहले जैसे पढ़ाते थे अभी भी वैसे पढ़ाते हैं. 10 साल पहले जैसे वो डिसिप्लिन थे अभी भी वैसे ही. लेकिन एक टेंडेंसी हो जाता है कि एक इंस्टीट्यूट जाने के बाद अगर रेगुलर फैकल्टी है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक लेजीनेस आ जाता है, दूसरों को देख के लेजीनेस आ जाता है. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है. प्राइवेट कॉलेज में ये ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट मैनेजमेंट को अगर लगा कि ये टीचर इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे तो तुरंत उनको निकाल भी सकते हैं. उस डर की वजह से वो अच्छे से काम कर पाएगा. तो मैं हर एक प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ. मेरे वो जो वीडियो है जिसमें मैंने प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो उसको आप जरूर देखिए. उसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज वैसे कट हो जाएगा. जो बचे हुए हैं बस उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव पॉइंट्स. तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी गिवन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक चीजें हैं. जैसे कोई प्रोग्राम आ गया, कोई फॉरेन एक तरह से फॉरेन से या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ मैटर है, तो तुरंत वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा. तो आपकी जो फैकल्टी है मे बी दे गेट बिजी विद अदर वर्क. ऑफ कोर्स दे आर डूइंग ऑथेंटिक वर्क इन द सेंस दे आर डूइंग द लीगल वर्क व्हाट इज गिवन टू देम, बट आपको एज ए स्टूडेंट कभी कभी इतना ध्यान नहीं दे पाते. दे गेट बिजी विद अदर रिलेटेड वर्क, ऑफिशियल वर्क. ये भी कभी कभी होता है, और इसके वजह से स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है वो भी इतना पर्सनल नहीं होता है. तो कभी कभी वन टू वन रिलेशन नहीं मिलता है, वन टू वन फोकस. तो फैकल्टी में नॉट फुली फोकस ऑन द टीचिंग. प्राइवेट कॉलेज में वो ज्यादातर नहीं होता है. और एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है, इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं. अगर आप खुद भी इंटरेस्टेड है तो इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं. मेडिसिन सप्लाई जब बात करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में हमेशा एक लिमिटेड सेट ऑफ मेडिसिन होते हैं. ऐसे नहीं है कि सारे हजारों की दवाई रखा हुआ है उसमें से आप कुछ भी दे दो, ऐसे नहीं. वहां पर बहुत ही लिमिटेड होगा, 50 होगा, 60 होगा, 50-60 मेडिसिन यू हैव टू गिव फ्रॉम देम. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ केस ऑफ इंक्रीज्ड ब्लीडिंग per vaginum during the menstruation, so there could be one चूर्ण like पुष्यान का चूर्ण. जो भी आएगा उसको वही दिया जाएगा. हो सकता है उसके आगे और भी मेडिसिन हैं जो कभी कभी दूसरा कंडीशन में चाहिए होगा. मतलब हर एक पेशेंट में अलग अलग मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है. बट व्हेन यू आर वर्किंग इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड नंबर ऑफ मेडिसिन, समटाइम्स द मोनोपोली occurs and you may not get that difference between the medicines. In private institutes there is an advantage. वहां पर आपको ज्यादातर बाहर भी लिखने का मौका मिलता है, तो पेशेंट भी अफोर्डेबल है, तो ज्यादातर आपको एक्सपोजर बाहर मिलेगा. एक्सपोजर आपको अलग अलग मेडिसिन का ज्यादा मिल सकते हैं. तो ये सारी चीज अगर आप खुद इंटरेस्टेड है तभी हो पाएगा. ऐसे ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, आप बाद में मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा. तो ये हो गए कुछ लिमिटेशंस. प्री ट्रीटमेंट की वजह से, जैसे सपोर्टिंग स्टाफ है, आपके पंचकर्म के स्टाफ है, आपके नर्सेस है, आपके जो थेरेपिस्ट है, कभी कभी उनको लगता है कि जो पेशेंट है वो फ्री में आ रहा है तो उनको इतना ध्यान से नहीं करना है. ये ह्यूमन टेंडेंसी है. व्हेनेवर यू पे समथिंग पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन यू, व्हेन यू डोंट पे दे डोंट टेक केयर ऑफ यू. ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है. इसको आप सही कर सकते हैं. इफ यू टेक केयर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम योर पर्सनल केयर पॉइंट ऑफ व्यू, देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट. बट आपके सपोर्टिंग स्टाफ कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं. दिस इज इन रिलेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ऑफ कोर्स एक्सेप्शन हो सकते हैं. अगर बंदा जो है या जो वर्कर है इज ए डिसिप्लिन पर्सन, ऑफ कोर्स वो चाहे गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो काम तो करेगा ही करेगा. लेकिन ये एक रूटीन टेंडेंसी है जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव की बात जब हम कर रहे थे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बारे में,
एक चीज तो आपको पक्का पता होगा कि कहीं ना कहीं हर एक कॉलेज में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। तो उनमें से कौन सा बेस्ट, ये पॉइंट जो मैं शुरुआत में उठाया था, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई एक पिन पॉइंटेड आंसर नहीं है कोई एक कॉलेज बेस्ट है। तो कुछ फैक्टर्स जो मैंने अभी कहा आपको, ये हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो सकता है आपके टीचर्स एट्रिशन रेट, ये हो सकता है द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर। अगर प्रोफेसर्स भी क्लास ले रहे हैं इसका मतलब कॉलेज बहुत अच्छा है। इफ द प्रोफेसर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड टू टेक क्लास, प्रोफेसर मींस द वन हु हैज मोर देन 10 years of experience, means they are interested to teach, students can get to know. If the hospital setup is very good with minimum facility of at least with panchakarma therapy and surgical parasurgical procedures and with good pharmacy, medicines available, with a good number of patients, good number of patients is a must to learn. Variety of patients, good number of patients, this is also one of the important factors. और जितना आपके घर से नजदीक है, आपके प्रैक्टिस एरिया से नजदीक है, तो आपके मेडिसिन भी सिमिलर होगा, तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा। कभी कभी क्या होता है, आपने बहुत दूर जगह बीएमएस करके आए, अपने जगह वापस आए, वहां पर दवाई काम नहीं करेगा, बिकॉज इन आयुर्वेदा यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ देश काल एंड अदर थिंग्स वेयर the medicines of that particular area are more potent for that particular person or the people around that area. So इस तरह की चीजें जो है सारे मिलकर एक कॉलेज आपको बेस्ट लग सकते हैं। सेम फैक्टर्स may not be suitable for another student, इसलिए whenever you take into consideration of all these factors, ultimately आपके लिए क्या वो बेस्ट है या नहीं है, बस ये आंसर आप दे सकते हैं। आई कैनॉट जनरलाइज दैट this is the best college for every student of the country. No, not possible. So some of the factors I have mentioned, and basically I have divided between government and private. I have taken the major issues. I think now you might be in a better position to take decision if I had any confusion. तो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, एलोकेशन से पहले, जो स्कैम रिलेटेड है प्राइवेट कॉलेजेस के, उसके बारे में जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेज वेर यू कैन टेक अ डिसीजन। बैक स्टेप भी ले सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। अगर आप आगे गए तो वापस आने का रास्ता नहीं है, अगर आप बैक स्टेप ले लिए तो शायद आपको आगे और मौका मिल सकता है। सो दैट इज वाई टेक केयर ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स बिफोर चूजिंग कॉलेज। ओनली यू कैन मेक योर कॉलेज एज द बेस्ट। वो दूसरों के लिए बेस्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बिकॉज what matters is how much you are benefited from that institute. If you are benefited, you tell it is best. If you are not benefited, you don't tell it as best. So it's a relative term. So with this, I think you what I really wanted to tell regarding the best UG college in India or PG college in India. So until next time, thank you.